کی، لیکن اب کچھ ریئل کھیل کی جانب چلتے ہیں. کل لاہور میں ایک واقعہ ہوا جو بڑی معمولی نوعیت کا تھا. پاکستان کے ہر شہر میں ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ان گنت ہوتے ہوں گے، لیکن واقعہ جو ہوا وہ شخصیت جو ہے وہ بڑی غیر معمولی تھی. واقعہ معمولی تھا لیکن شخصیت غیر معمولی تھی. عمر اکمل صاحب جو کہ قومی کرکٹ ٹیم بیٹسمین ہیں، ٹیسٹ کرکٹر ہیں، یہ کل ظاہر ہے کہ خبروں کا موضوع بنے رہے. لاہور کا ایک علاقہ ہے گلبرگ، یہ وہاں پہ جا رہے تھے ایک ٹریفک سگنل پہ. ان کا کوئی ایک سگنل کی خلاف ورزی ہوئی، پولیس کا یہ کہنا ہے. پولیس نے ان کو روکا، اس کے بعد کچھ بدتمیزی ہوئی. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ یہ بڑا بحث چلتی رہی. میں آپ کو مزید بور نہیں کروں گا. عمر اکمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. انہی سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا. جی عمر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر، اور الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. کل کیا ہوا تھا؟ کل سمجھ لیں کہ میری زندگی کا اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا، اور میرا وہ ڈے آپ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا سب سے خراب ڈے تھا. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ہوا بس یہ تھا کہ سگنل پہ کھڑا ہوا تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں اپنے ہر انٹرویو میں اپنی سیکیورٹی کا اور ان وارڈنز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں. لیکن ریسنٹلی جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ میں بڑا شاکڈ ہوں. انہوں نے مجھے جیسے ریڈ سگنل پہ میں رکا ہوں، یلو لائٹ چلی. یلو لائٹ آپ کو پتا ہے آپ اب کیولری گراؤنڈ سے آ رہے ہیں؟ جی، میں کیولری گراؤنڈ سے آ رہا ہوں اکیڈمی جانے کے لیے، ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے. ایم ایم عالم روڈ پہ آپ رائٹ ہوئے؟ جی، ایم ایم عالم روڈ پہ میں رائٹ ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ریڈ سگنل پہ میں کھڑا ہوں، یلو لائٹ آن ہوئی ہے، ایمبر ہوئی گئی. ٹھیک ہے. وہ آپ کو سگنل دیتی ہے شاید، میرا خیال 3 کلاس میں یا 2 کلاس میں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یلو لائٹ پہ میں نے تھوڑی سی گاڑی آگے لی ہے، وارڈن نے مجھے روکا ہے. اچھا. میں رک گیا ہوں. آیا اسٹیٹ میں اس نے بڑے ہارڈ لفظوں میں میرے سے لائسنس مانگا ہے، اور میں اپنا لائسنس دے رہا ہوں، اور میں نے اسے بولا یار بھائی پیار سے بات کر لو، اگر پہچان ہی گئے ہو تو. اس نے پھر آگے سے کوئی ابیوزنگ 3-4 اس نے کی مجھے، اور اس نے کہا کہ تم کرکٹر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ اس نے آپ کو پہچان لیا؟ جی، آلریڈی وہ مجھے پہلے پہچان گیا تھا. اور اس نے جب ابیوزنگ شروع کی تو میں نے کہا یار میں ذرا گاڑی سائڈ پہ لگا لوں، جو آپ کے پیچھے آفیسر کھڑے میں ان سے بات کرتا ہوں. آپ لوگوں نے تو کبھی اس طرح کیا ہی نہیں ہے، یہ کیوں ابھی ہی میں سن رہا ہوں. ابھی میں آپ ٹی وی بھی فالو کر رہا ہوں کہ اب پبلک بھی آپ سے بڑی پریشان ہے کہ بلا مقصد آپ چلان کر رہے ہیں. یہ دن کا کتنا ٹائم ہوا؟ میرا خیال ہے آلموسٹ 12-15 ہوں گے. اچھا، دوپہر کا وقت؟ کیونکہ اسی وقت ہمارا پریکٹس کا ٹائم ہوتا ہے. صحیح. تو میں اترنے کے لیے آیا ہوں. میں نے جب تھوڑی سی گاڑی آگے کی، اس نے میرا کالر پکڑ کے باہر کھینچنے کی کوشش کی. ایسے بتایا اپنے گاڑی کی کھڑکی سے اندر سے؟ جی، مجھے باہر کھینچنے کی کوشش کی، اور اپنے آفیسر کو بتایا کہ یہ بھاگ رہا ہے، جو کہ میں بھاگ بالکل بھی نہیں رہا تھا. میں مڈل میں کھڑا ہوتا اور سائڈ پہ میں اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا. ٹھیک ہے. میں جیسے ہی اترا ہوں اس نے اسٹریٹ اوے میرے پہ اٹیک کر دیا. اب یہ گاڑی آپ لگا چکے ہیں، پارک کر چکے ہیں؟ ہاں جی، میں پارک کر کے باہر آیا ہوں. یہ آپ نے رائٹ ٹرن لے لیا اور سڑک پہ آپ نے لیفٹ گاڑی پارک کی؟ ہاں اور جی. اب آپ نیچے اتر گئے، یہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے؟ جی، اور یہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اور میں جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترا ہوں اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرے آفیسر کے سامنے جا کے میری کمپلین کرے گا. میری جاب خطرے میں جا سکتی ہے، جو کہ جانی چاہیے ایسے لوگوں کی، جو کہ ہم جیسے لوگوں کو پہچاننے کے باوجود ہمارے سے اتنے ہارڈ ورڈز یوز کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عام پبلک کو تو یہ ویسے ہی مار دیتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا کہنا یہ ہے، اس کے ظاہر ہے کہ ابھی وہ ہم بات کریں گے، سی ٹی او سے بات کریں گے، کوشش کر رہے ہیں کیپٹن سہیل سے بھی بات کریں، ان کا ورژن بھی ظاہر آنا چاہیے. یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات بتائیں، جو سی ٹی آپ جن کا نام لے رہے ہیں نا، انہوں نے دیکھے بغیر، جہاں تک مجھے پتا چلا، انہوں نے دیکھے بغیر وہیں سے ہی 3-4 مقدمے میرے پہ ڈال دیے. کہ انہوں نے نہ میرا ہی رائے سنی نہ اس کی. بالکل بات کریں گے، لیکن پہلے آپ بتائیے کہ اچھا پھر آپ نے. میں جیسے ہی نیچے اترا ہوں اس نے میرے پہ حملہ کیا ہے، اور میں دیکھتا رہ گیا ہوں. میں نے اس کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، نو ڈاؤٹ کہ پبلک وہاں پہ ایک دم سے اکٹھی ہو گئی، اور میں نے اس کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا. اور جیسے ہی اترے اتنی دیر میں وہ ان کے آفیسرز آئے ہیں، آفیسر سے پہلے وہ حملہ آور ہو گیا ہوا ہے. آپ نیچے اترے ہیں اور وہ آپ پہ یہ بات کچھ. میں جیسے ہی نیچے اگر تو آپ کا مختلف ایک دیکھنا، اگر آپ کی مختلف مسلسل آپ کا ایک ہیٹڈ آرگومنٹ جاری ہے جی، اور آپ نیچے اترے اور وہ پھر آپ پہ حملہ آور ہو گیا. ہاں جی، پہلے جیسے میں نے گاڑی پارک کرنے کے لیے میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا رہا ہوں، اس نے اسی ٹائم میری ونڈو نیچے تھی، اس نے اسی ٹائم کالر پکڑا، جو کہ لاسٹ فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا میرا کالر پھٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے. میرا کالر کا بٹن ٹوٹ گیا. تو میں جیسے ہی نیچے اترا ہوں تو میں نے اسے کہا جی بھائی بولیں یار آپ کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں. تو اس پہ اور اس نے آپ پہ حملہ کر دیا. اس نے مجھے اسٹریٹ اوے میرے پہ حملہ کیا، اور اس نے سمجھ لیں کہ فزیکل میرے پہ حملہ کیا. اور جیسے ان کے جو آفیسر ہیں جس نے مجھے ہاتھ دیا، وہ اسی ٹائم آتے ہیں میرے پاس اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمر بھائی پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، یہ تھوڑا سا پاگل ہے، ہم اسے سمجھاتے ہیں، آپ پلیز ہم کہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آپ پلیز ابھی اس بات کو ختم کر دیں. سٹنلی میرے خیال 2-3 منٹس میں میڈیا آیا تو
पुलिस जैसे ही आई, मीडिया आया, उन्होंने कहा कि हम कहीं बैठ के बात कर लें। मैंने कहा नहीं, मैंने एप्लीकेशन देनी है पुलिस में कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अच्छा, अब इस मौके पे वो आपसे ट्रैफिक वाले ये कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप जाएं उमर भाई, ये थोड़ा सा पागल है, हम इसको ठीक करते हैं, आप प्लीज। उतनी देर में पुलिस आ गई, मीडिया आ गया, उन्होंने कहा कि हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं, आपकी प्लीज मेहरबानी पुलिस स्टेशन मत जाएं। ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इंसाफ लूंगा। अच्छा, मेरे साथ हुई है ज्यादती। एज ए पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान को सर्व करता हूँ, किसी डिपार्टमेंट को नहीं सर्व करता। मैंने कहा ये मुझे इंसाफ चाहिए। और शहरी वैसे भी आपका, बिल्कुल, हर शहरी का आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे ये इंसाफ चाहिए। मैं एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन जैसे ही जाता हूँ, पता चलता है, उधर से पता चलता है जी आप सुलह कर लें, मुल्क की बड़ी बदनामी है, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जब दूसरी कंट्रीज में आपकी न्यूज जाएगी तो बैड रेपुटेशन जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे बड़ों ने कहा, वाले साहब ने कहा, कामी भाई ने कहा यार चल कोई बात नहीं, एज ए पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान को सेव करना है। हम लोग ही जाके दूसरी टीमों को बोलते हैं कि यार आगे खेलो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है, जो कि एक बड़ा कह लें कि बुरा इंप्रेशन पड़ता था दूसरी कंट्रीज पे। तो मैंने कहा ठीक है, और सडनली ये मैं बात पूरी करता हूं अपनी, और 5 मिनट के बाद मेरे पे पर्चा हो जाता है और मेरे से फोन शोन हर चीज लेके मुझे लॉकअप में बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको उमर साहब 1 मिनट के लिए रोकूंगा, और सीटीओ जो है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन सोहेल हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी उमर की, फरमाइएगा जी सोहेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके जवाब में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि उमर साहब को कम से कम झूठ बोलते हुए ये एहसास कर लेना चाहिए कि हमारे कौम के हीरो हैं। इस तरह ब्लंटली इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी ट्रैफिक के ऑफिसर को अगर ये कह रहे हैं कि वो पागल है, तो उन्हें ये एहसास करना चाहिए कि हमारे इस लाहौर शहर में कम से कम 10,000 चलान डेली होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं बोला उन्हें पागल, आपके जो कोलीग है उन्होंने ही बोला था कि ये पागल है। आप पहले पूरी बात सुने, आप इस तरह किसी पे इल्जाम मत लगाएं। मैं आपके लिए नहीं खेलता, मैं पाकिस्तानी टीम के लिए खेलता हूं, मुल्क के लिए खेलता हूं। आप प्लीज थोड़े से अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करें प्लीज। देखिए जी, ठीक है जी उमर साहब जरा प्लीज मैं अपनी बात कर लूं। जी, आपने जो बात कंप्लीट की है ना, उस पे पहले आप थोड़ा सा वजन डालें प्लीज। इस तरह बात किसी को नहीं इस तरह बोलनी चाहिए आपको। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, रिटर्न रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जी जी उमर साहब प्लीज मेरी पहले जी सोहेल साहब मेरी जी सर, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि इनका गाड़ी का नंबर काइंडली 9966 हमारी एक्साइज की वेबसाइट मैं जानता हूं, उस पे डालें, उस पे डालिए इनकी गाड़ी का नंबर काइंडली। और नहीं वो टोकन का मुझे पता है, वो टोकन के मामला है, वो इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात हो रही है बदतमीजी की। वो ये कह रहे हैं कि एक तो बदतमीजी, मेरी पूरी बात सुन लेने, मेरी पूरी बात पहले कंप्लीट है आप, ताकि पूरी लोगों को हर चीज का पता होना चाहिए। इन्होंने 3 वायलेशंस की हैं। सबसे पहले इन्होंने इशारा काटा है। किसी मुहज्जब कौम में इशारे काटने की मिसालें हैं। नंबर आपके पास आपके सीसीटीवी होता है वहां पे, मैंने ये अपने बयान में लिखा है कि सीसीटीवी देखें, उसके बाद मेरे पे ये वाले पर्चे लागू होते हैं। इसी चौक में हमारे इस मुल्क के बहुत नामवर बैट्समैन जावेद मियां साहब का चलान हुआ है। उन्होंने बखुशी अपना चलान कराया, उनका कोई इशू नहीं बना। नंबर 2, इन्होंने वहां पे इशारा काटा, एक वार्डन ने रोका नहीं रोके, दूसरे ने रोका नहीं रोके, तीसरे ने जब रोका उत्तर दिया, इन्होंने उनको धमकियां देना शुरू कर दी। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल मैंने धमकियां शुरू कर दी, वो आपको गलत बता रहे हैं। जैसे ही जो एसपी साहब थे ना गुलबर्ग, उन्होंने जब अपनी देखिए मुझे सामने बुलाया है ना, उमर वैसे नहीं वो जैसे बात कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि वो किसी प्लेयर के बारे में इस तरह वो बोल रहे हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे थे वो खामोश थे, उनको जरा बोलने देखिए। मुझे सिर्फ सर मेरी एंकर आपसे, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पूछना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उमर साहब से, ना तो मैं कन्फ्रंट करना चाहता हूँ, ना मैं बात करना चाहता हूँ। दुरुस्त है, आप बताइए। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। मीडिया से कर रहा हूँ जी, हाँ जी, मैं भी मीडिया के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। देखें, अगर हम एक दूसरी बात ये कहते हैं कौमी हीरो हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, हम इनकी इज्जत करते हैं। कौमी मुल्क से जो मतलब हीरो होते हैं उनको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। इन्होंने इशारा काटने के बाद जो भी एक्ट किया वो एक पुलिस के साथ एक्ट है, लेकिन बहसीयत शहरी जब ये एक्साइज के डाटे के मुताबिक आप देखें, सोहेल साहब उधर बात मत लेके जाएं, वो बात की बात देखिए, वो मौजूद में बहस नहीं है। मामला ये है कि इनके साथ बदतमीजी, क्या इनका कहना ये है कि पुलिस नहीं है जी, एहलकार इन पर हमला आवर हो गया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि ये जी हमारे शहर में मैंने आपको 10,000 चलान होते हैं। ये हैरत अंगेज बात है, ये हैरत अंगेज बात है। आपने ऑर्डर पास किए हैं कि हर बंदा 15 से 20 चलान नहीं करेगा रोज का, तो उसकी जॉब खतरे में जाएगी, जैसे आपकी है। कोई ऐसी बात नहीं है जी, देखें सरासर गलत बात है। उसके बाद हम जब एक ट्रैफिक पुलिस अफसर हैं, हमने अपना जो भी मामला था, हमने जो वहाँ पे एएसपी है, और एएसपी आपको पता है इस महकमे में
पुलिस के महकमे में बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत एक ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं। जाहिद अनवर साहब की बात कर रखा जी, उनकी आप रेपुटेशन पता करें। उन्होंने इस मामले को इंडिपेंडेंटली सुना, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अच्छा सुहेल साहब, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आप हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक के बाद मजीद इस मसले पे बात करेंगे, लेकिन ये कमर्शियल ब्रेक का दायरा में लेना है, इसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिए दुनिया न्यूज। जी वेलकम बैक। जी उमर, आप फरमा रहे थे आप हमारे पास चुके वक्त की कमी है, लिहाजा कंक्लूजन बता दीजिए, आपकी शिकायत क्या है? मेरी शिकायत ये है कि मेरा ख्याल ऑन टीवी उस वार्डन ने बोला है कि जी उमर ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, और आपके ही एंकर ने, मीडिया को कोई एक एकाउंट था मैं देख रहा था, और उसने बोला कि आपकी ये शर्ट का बटन, और उसने ऑन टीवी बोला कि ये पहले से टूटा हुआ है। उमर ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। आपका कहना यह है कि यानी आपकी तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई और आप थाने गए, और थाने पर क्या हुआ? बिल्कुल, मैं थाने में गया, मैंने एप्लीकेशन अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन नहीं मानी गई, और मुझे हवालात में बंद करके हर 2 घंटे के बाद मेरा बयान लिया जा रहा है, और बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपका कोई एक भी बयान गलत हुआ आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो मैं ये परेशान हूं कि 1 दफा बयान दे दिया, 2 दफा दे दिया, 3 दफा दे दिया, 4 बयान ले रहे हैं, और जबरदस्ती मुझे बोल रहे हैं कि साइन करो। मैंने बोला यार मैं साइन तो नहीं इस तरह कर सकता, जो मेरा बयान है वो लिख दो, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन वो आगे से दूसरा। बासित अली साहब साबिक क्रिकेटर हैं, बासित अली साहब ट्रेनर भी हैं, हमारे साथ हैं, वो उनके कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में। जी बासित साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है बासित साहब? मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन सुहेल साहब। जी सुहेल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी लास्ट वर्ड प्लीज बताइएगा, आप क्या जवाब देंगे? इल्जामात ही है जाहिर है, अभी तक तो हम इन्वेस्टिगेशन ही, आप बताइए क्या 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 कहेंगे आप? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक लाइनर कहूंगा, कानून सबके लिए बराबर है। मजहब कौमों में हमारा इज्जत, हमारा मकाम तब बढ़ेगा जब हम तमाम के लिए कानून एक जैसा रखें। ये ना सिर्फ हमारी इकदार है, बल्कि हमारे मजहब में भी ये बताया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बताया था कि तमाम के लिए रूल एक है, दुरुस्त है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए रूल एक है। और अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं एक गलती दूसरी गलती का जवाब कभी नहीं होती। एक एमपीए हुआ करते हैं नईमुल्लाह गुल साहब, 4 अक्टूबर 2013 को आरपीओ ऑफिस फैसलाबाद के सामने 3 वार्डन्स की उन्होंने वर्दियां फाड़ी। अब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, देखिए कानून अभी आपने कहा ना सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये जो एमपीए नईमुल्लाह साहब हैं, ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मैं ये नहीं कर रहा कि उन्होंने ठीक किया या इन्होंने जो किया वो। एक सेकेंड जी, मैं सीटीओ लाहौर हूँ, काइंडली आप मुझसे लाहौर के मामला पे बात करें, किसी दूसरे के मामला पे चलें, लेट्स नॉट गो देयर, ओके फाइन, ना वो मेरी जुरिसडिक्शन है। ठीक है ठीक है, चलिए आप बताइएगा उमर साहब के हवाले में, आप लास्ट वर्ड कुछ आप कहना चाहें? मैंने आपको बता दिया, आप ये कहना चाहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, इसके अलावा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हारून रशीद साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुन ली, हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, एक तो हमारे मिजाजों में हिजान बहुत है, दूसरा हम कानून की पासदारी का कोई तसव्वुर ही नहीं रखते, ईगोइस्ट बहुत है, इंडिविजुअलिस्ट बहुत है। मुझे खुर्तूम का तजुर्बा है, जब वहाँ हो जाता है हादसा तो दोनों आदमी उतरते हैं और दोनों कहते हैं अल्लाह करीम, और इसके बाद वो गुफ्तगू शुरू करते हैं। इतनी जज्बातियत के साथ नहीं मसले हल हो सकते। हुक्मरान तबका कानून की पासदारी नहीं करता, उससे एक मिजाज बन गया, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। हम सब कानून का एहतराम नहीं करते। ये जो बच्चे हैं, ये हमारा नाम है, ये हमारा इफ्तिखार है, ये हमारी पहचान है दुनिया में। थोड़ी सी नरमी के साथ इनसे बात कर लीजिए। फर्ज कीजिए इनसे गलती हो गई थी, उमर अकमल से फर्ज कीजिए गलती हो गई थी, 100% पुलिस का मौकम मान भी लिया जाए तो कॉलर पकड़ना और इस तरह बयान लेना और उसमें डालना, आपने सही बात है। वक्त हुआ जी प्रोग्राम का खत्म, जाने से पहले 2 बातें। एक तो एफआईए का जो हेडक्वार्टर है लाहौर में टेम्पल रोड पे, दोस्त वहां पे खौफ से लरज रहे हैं। वजीर दाखिला से दरखास्त है कम से कम उनकी सिक्योरिटी को बंदोबस्त करने। उनका ये कहना है कि हमारे दफ्तर के सामने सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, ना ही बैकअप है। और ख्वाजा सलमान रफीक जो कि वजीर सेहत है पंजाब के, उन्होंने कल का प्रोग्राम देकर हमसे वादा किया है कि तेजाब फेंकने वाले टाउनशिप पे जो कल जो फेंका गया उसको मुलजिम को कैफरे के दाद तक पहुंचाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे। देखते रहिए दुनिया न्यूज।